Dear future officers, welcome to Youth Power Academy. Myself, Nitin Shrivas, I am the faculty of Current Affairs at YPA. Without wasting much of our time, let's begin today's session on current affairs. But before that, let me give you a few instructions which are core to your preparation. So the first instruction is that you should attempt our daily MCQs quiz uploaded on our Telegram channel so that you can feel the heat of UPSC, because I try to emulate or try to compete in the quality matter related to the current affairs MCQs, because I don't just ape the UPSC. For example, whatever formula or pattern UPSC followed in 2024, I won't be aping exactly the same model this year, because you need to be prepared for each and every kind of situation. Paper can be very easy, paper can be moderately easy, paper can be extremely difficult, just like 2023 paper. So you have to prepare yourself mentally and psychologically and physically from all the perspective, from all the dimensions, uh, from content wise and your temperament wise. Otherwise, if you go only with the one dimension, then there are high chances that you will feel undue stress or anxiety while solving the paper on 25th of May. So to save yourself from that particular dilemma or that particular situation, that particular challenge, you should be start mentally preparing yourself in that particular regard. So my current affairs daily quiz will aid you in that perspective. This is the first thing, and the next instruction is that do not ignore my current affairs daily magazine or daily PDF, because this is India's only PDF of current affair which is prepared holistically, comprehensively, and covering each and every nitty gritty required to clear the prelims, because prelims is very difficult stage in my opinion compared to the other two stages, because lakhs of people are competing at this stage and you need to be there in 13,000 people. So the odds are against you and the challenge is very extreme. So you have to cover the current affairs and your static portion as per the demand requirement of UPSC, and keeping the syllabus and trend in the mind. So I hope I have cleared all the instructions with you all. Now let's move on to discussing the real issues of current affairs. The first news item is fluorosis crisis in Sonbhadra due to contaminated groundwater. Okay. अब ये पूरे आर्टिकल में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है. This is the crisis, this is the place, and this is impacting this. Basically, there is a contamination of groundwater and how it is impacting the lives of people there. वहाँ के जो लोग, वहाँ पर जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे वहाँ कट रही है, कैसे उन लोगों के ऊपर हेल्थ क्राइसिस आया हुआ है. तो मोर और लेस इस आर्टिकल में उसी को डिस्कस किया हुआ है. तो इसके तीनों ही डायमेंशंस हम लोग यहाँ देखेंगे. सो बेसिकली इस न्यूज़ आइटम में ये कॉन्टेक्स्ट है कि बदरु बेड रिडन एक पर्सन है इस विलेज से, एंड ही इज़ फेसिंग द इशू ऑफ फ्लोरोसिस. ओके. तो अब फ्लोरोसिस क्या होता है वो हमको यहाँ देखना पड़ेगा, कैसे होता है वो हम यहाँ देखेंगे, और कितना सेफ लिमिट में फ्लोराइड का कंजम्पशन होना चाहिए हम लोग वो भी देखेंगे. एंड फिर सोनभद्र से रिलेटेड जो भी यूनिक चीज़ इस आर्टिकल में दी गई है हम लोग वो भी देखेंगे. तो बेसिकली हम 3 से 4 डायमेंशंस पर बात करेंगे यहाँ पर. ठीक है. तो एक एक करके इस पर पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद में मैं उसको एक्सप्लेन आपको धीरे धीरे करता हूँ. ठीक है. पहले यहाँ ये दिया हुआ है कि सोनभद्र यूपी's second largest district where rich deposits of granite have leach access fluoride into the groundwater, making it unfit for human consumption. Okay, so this is the crux of this whole article. ये इसका crux है, and it's a problem that the government has taken note of it most recently in March report by the state water authority. ठीक है. तो ये इसका क्रक्स है. अब यहाँ ये देखेंगे कि भाई
डिपॉजिट ऑफ ग्रेनाइट से कैसे एक्सेस ऑफ फ्लोराइड ग्राउंड वाटर में जा रहा है। तो बहुत ब्रीफली मैं इसको समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, बहुत शॉर्ट में इसको निपटाना होगा। हम छोटी छोटी चीज़ों में इसके ऊपर समय ज़ाया नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डिपॉजिट ऑफ ग्रेनाइट से ये लीक हो रहा है। तो पहला अगर आप देखेंगे इसमें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेनाइट है बेसिकली वो फ्लोराइड बेयरिंग मिनरल्स कंटेन करता है, जैसे फ्लोराइड, बायोटाइट, एपेटाइट। और ये जो केमिकल्स और ये जो मिनरल्स हैं बेसिकली ये केमिकली अनस्टेबल होते हैं, स्पेशली जब एक्सपोज टू वाटर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा देर तक अगर ये वाटर के साथ एक्सपोज रहे तो ये केमिकली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा इसमें एस्पेक्ट आता है आपका ये लीचिंग प्रोसेस, कि जैसे जब वेदरिंग हो रहा है या डिसोल्यूशन हो रहा है, जैसे रेन वाटर है, ओके, सो रेन वाटर और ग्राउंड वाटर स्लोली डिजॉल्व दिस फ्लोराइड रिच मिनरल्स। फिर उसके बाद में जब केमिकल रिएक्शंस ब्रेक डाउन फ्लोराइड बॉन्ड्स, देन दे रिलीज द फ्लोराइड आयंस इनटू द वाटर, एक वो है। फिर इसमें एसिडिक कंडीशंस भी एनहांस करती है लीचिंग, कि अगर ग्राउंड वाटर थोड़ा भी ज़्यादा स्लाइटली भी अगर एसिडिक है तो वो फास्ट एक्सीलरेट करता है मिनरल का ब्रेक डाउन, तो वो भी उसमें एस्पेक्ट है। और फिर लो कैल्शियम लेवल इन वाटर ऑल्सो प्रमोट्स फ्लोराइड डिसोल्यूशन as calcium binds with fluoride to form insoluble CaF2, ओके, कैल्शियम फ्लोराइड भी, तो वो भी एक उसका एक एस्पेक्ट है इसमें। फिर उसके बाद में टेम्परेचर से भी होता है, तो ये उसके बहुत सारे रीज़न है, उसके हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेजरली मैंने आपको उसकी 3-4 चीज़ें बता दी हैं। तो इस वजह से ये इस तरीके से फ्लोराइड जो है एक्सेस में एक्सेस अमाउंट में ग्राउंड वाटर में जाता है, ठीक है। अब वो अगर ग्राउंड वाटर में जा रहा है तो फिर वो क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, तो वो भी अगर आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन्स में तो वो यहाँ डिस्कस किया हुआ है। जहाँ आप लिखा हुआ है कि फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। तो फ्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लोराइड विच कैन अफेक्ट टीथ, बोन्स एंड अदर टिश्यूज़। सो बेसिकली उसके 3-4 तरीके हैं जिससे कि ये हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन, वहाँ अगर उसमें हो रहा है तो वो, फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्लोराइडेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स, उससे भी हो रहा है। फिर फ्लोराइड रिच फूड्स एंड बेवरेजेस जैसे कि टी, फिश, फूड ग्रोन इन हाई फ्लोराइड सॉइल, या तो फिर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो रहा है, जैसे वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, ग्लास और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में इनहेल फ्लोराइड। फिर उसके बाद में जो फ्लोराइड सप्लीमेंट्स होते हैं उसका अगर ओवर यूज़ हो गया तो उसमें भी होता है। तो उसमें भी आप 2 कैटेगरी है, 2 टाइप का फ्लोरोसिस होता है। एक होता है डेंटल, जिसमें इट लीड्स टू द डिस्कलरेशन एंड पिटिंग ऑफ टीथ, ठीक है। और दूसरा होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस, जिसमें आपके जॉइंट पेन हो रहा है, स्टिफनेस होता है, बोन डिफॉर्मिटीज़ होती है इन सीवियर केसेस। तो इसके ये 2 तरीके हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। अब इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है डिस्कस करने के लिए। अब इसकी जो प्रोसेस है कि कैसे ये फिर चीज़ें बॉडी में इम्पैक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा बायोलॉजी हो जाएगा उसमें, तो इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली मैंने आपको बता दिया कि उसका कॉज क्या है, ग्राउंड वाटर में क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो कैसे वो प्रोसेस होती है, फिर फ्लोरोसिस से कौन कौन सी बीमारी होती है वो भी बता दिया। अब इस आर्टिकल में जो बची हुई चीज़ें वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि सेफ़ लिमिट है जो इंटेक है फ्लोराइड का कितना होना चाहिए, तो वो 1 to 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है, ये इसका सेफ़ लिमिट है। इसके बियॉन्ड अगर जाता है तो ह्यूज रिस्क हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये दिया है कि फ्लोरोसिस इज़ नॉट अ फैटल, बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है ये। अगर आपने इसको कंट्रोल किया, इसके इंटेक को, अगर आपको ठीक से पानी मिलता है पीने का, साफ़ पानी मिलता है तो, और आपका अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पे शुरू होता है तो आपका हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इससे सफ़र ना करें। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल। जैसे कि इन द एल्डरली इट कैन कॉज जॉइंट पेन, स्टिफनेस, जो मैंने पहले ही बता दिया है, बोन डिफॉर्मिटीज़, मोबिलिटी इश्यूज़, मसल वीकनेस एंड फटीग। और चिल्ड्रन में होता है कि द मोस्ट कॉमन साइन इज़ येलो स्टेन्स ऑन द टीथ, ओके। अब आते हैं कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग सोनभद्र, तो वो भी देख लेते हैं। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज़ कॉल्ड एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड फिर ये सब चीज़ें आपके देखने की ज़रूरत नहीं है, बट वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर में थर्मल, हाइड्रो और सोलर पावर प्लांट्स हैं।
तो our next news item is from international relations, but catering to the polity aspect of it. Cory Booker's record-breaking Senate speech. सो बेसिकली यूएस में क्या होता है ना कि एक यूनिक फीचर है वहाँ पे जिसे कहा जाता है फिलीबस्टर। तो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती है। एक बार किसी ने अगर स्पीच देना शुरू किया है तो वो बेरोक टोक जब तक उसे फिनिश नहीं करना है तब तक वो बोल सकता है, पूरी आज़ादी है। तो दिस पर्सन कोरी बुकर स्पोक फॉर मोर देन 24 आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट बाथरूम ब्रेक। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं देखनी, ये एसएससी के एग्ज़ाम में या जो और एग्ज़ाम होती है वो उसमें ये पूछा जा सकता है। वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी। हमारा कंसर्न है ये कि ये फीचर का यूज़ किया जाता है वहाँ पे फिलिबस्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मे बी प्रीलिम्स में शायद आपसे पूछ ले कि रिसेंटली फिलिबस्टर टर्म वॉज इन न्यूज़ रिलेटेड टू वॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली यही इसका इम्पॉर्टेंस है इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में। बाकी जो उन्होंने ये डिस्कस किया ये कहानी का हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। निहाल सरीन स्ट्रगल टू ब्रेक इन टू द 2700 चेस रेटिंग क्लब। सो बेसिकली निहाल सरीन इज़ अ चेस प्लेयर। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से भी काफ़ी सवाल पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ओके, तो उसके बारे में निहाल सरीन के बारे में जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है देख लेते हैं। ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू ब्रीच द 2600 रेटिंग मार्क, ठीक है। ये निहाल सरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ही स्ट्रगलिंग टू ब्रेक इन टू दिस ब्रैकेट। और यहाँ पे 2-4 और प्लेयर्स के नाम दिए हैं, डी गुकेश, प्रज्ञानंद, अर्जुन इरिगेसी, ठीक है। दीज आर दी वन ऑफ द बिगेस्ट चेस प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली ही वन निहाल सरीन वन सम टूर्नामेंट इन ताशकंद, ये भी आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ ढूंढने लायक है नहीं। ये प्राइमरी जिस्ट आपको पता होना चाहिए इस स्पोर्ट्स सेक्शन से इस न्यूज़ में, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ गुरुग्राम पुलिस अरेस्ट 13 इन ₹80 करोड़ साइबर क्राइम केस। अब इसमें कहानी में बस यही एक मेन कैरेक्टर है, I4C, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए कि एस्टैब्लिश बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, न्यू दिल्ली में है। एंड वर्क एज अ फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू कॉम्प्रिहेंसिवली डील विद साइबर क्राइम इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, ठीक है। बस ये आपको बताना चाहिए। प्रीलिम्स में हो सकता है कि यूपीएससी आपसे पूछ ले कि I4C इज़ रिलेटेड टू वॉट। और ये पूछ सकता है कि भाई ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्योंकि ऐसे पास्ट में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसके अंडर में ये आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें ये 80 करोड़ का स्कैम है, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके काम की चीज़ है वो मैंने बता दी है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ इंडिया एंड चिली कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल। ओके, तो चिली का बहुत बड़ा डेलीगेशन इंडिया आया हुआ है। तो अब उसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में आएगी, मैगजीन्स में आएगी। बट ये जो 5-6 लाइन का इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको क्रूशली 2 ही एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि हर चीज़ में हम हर तरीके से पीएचडी नहीं कर सकते। सो बेसिकली चिली इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, ये आपको बताना चाहिए। सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, ये भी आपको बताना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर जाएँ सो जो भी क्रिटिकल मिनरल्स ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम हो, कॉपर हो, मॉलिबेंडम हो या अदर रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो बेसिकली उसके लिए बातचीत चल रही है इंडिया चिली के बीच में CEP अंडर फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है।
तो इसको नेगोशिएट कर रहे हैं। तो बट ये तो चलो बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है CAPA वाली, इसको समय लगता है थोड़ा, बट इस पूरे आर्टिकल में से आपको ये 2 चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, मिलिट्री एक्सपेंशन इन गाज़ा। तो बेसिकली ये IR का टॉपिक है जो प्राइमरीली डील कर रहा है लोकेशंस जो UPSC में पूछे जाते हैं हर साल, जो लोकेशंस कंट्रोवर्सी में रहते हैं रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो उसी का एक एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे ये 2-3 प्लेसेस है, ये आपको पता होना चाहिए, एंड वही मैं बता देता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। So basically, Israel announced a major expansion of military operations in Gaza, saying large number of enclaves would be seized and added to its security zones, accompanied by large-scale evacuations of population also. Prime Minister Benjamin Netanyahu said troops were seizing an area he called Morag Axis. ठीक है, तो ये मोराग एक्सिस आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले कि मोराग एक्सिस किस कंट्री से जुड़ा हुआ है, या किस कंट्री में है, या डिस्प्यूटेड है, या जो भी है गाज़ा में है, कि इज़राइल उस पर क्या कर रहा है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मोराग एक्सिस है कहाँ। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ये जो सिटीज़ है गाज़ा की, राफा एंड खान यूनिस इन सदर्न गाज़ा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अब फिर ये बोल रहे हैं कि बिकॉज वी आर नाउ डिवाइडिंग दिस स्ट्रिप, गाज़ा स्ट्रिप, सेंस वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर स्टेप बाय स्टेप, सो दे विल गिव अस आवर होस्टेजेस। तो कहीं ना कहीं यही इजराइल की स्ट्रैटेजी है कि वो नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करना चाह रहे हैं गाज़ा को। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक चीज़ डिस्कस हुई है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर along the border of Egypt, which Israel sees as a key line preserving smuggling of weapons into Gaza। तो इसलिए ये एस्पेक्ट से फिलाडेल्फी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है IR के पर्सपेक्टिव से, एंड इट इज़ अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट। और कहीं ना कहीं इसराइल को शक है कि यहीं से स्मगलिंग होके वेपन्स आते हैं, तो इसलिए आपको ये मोराग एक्सेस, राफा एंड खान यूनिस इन सदर्न गाज़ा, और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बियॉन्ड इसमें हमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इज़राइल और गाज़ा का जो डिस्प्यूट है वो बहुत सालों से चलते आ रहा है, अभी भी चलेगा, और इसकी बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ आती जाएगी। बट प्राइमरीली इस आर्टिकल में यही 2 चीज़ें थी जो हमने देखनी थी, और हमने देख ली है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ PM मोदीज विजिट टू श्रीलंका स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। Okay, PM Modi arrives in Sri Lanka on the night of April 4th after participating in BIMSTEC summit in Thailand। So basically ये आपको पता होना चाहिए कि BIMSTEC की जो समिट है वो थाईलैंड में हो रही है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे श्रीलंका। अब श्रीलंका में जो चीज़ें होगी वही आपको यहाँ मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ये है कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मित्र विभूषण के ऑनर से फेलिसिटेट करेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें। अब बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये है कि उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जाएंगे श्री महाबोधि। ठीक है, एंड बोधि ट्री कंसिडर्ड सैक्रेड बाय बुद्धिस्ट। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक, आप देख लीजिएगा। एंड फ्रॉम ये यहाँ से श्री महाबोधि जाने के बाद में दे विल गो टू द अनुराधापुर रेलवे स्टेशन टू इनागुरेट द सिग्नल सिस्टम फॉर द नदर्न रेलवे लाइन श्रीलंका का। तो ये आपके मेंस के हिसाब से ज़रूरी है। फिर यहाँ पे 8 MOUs जो है वो भी साइन होंगे। 1 इज़ रिलेटेड टू एनर्जी ग्रिड कनेक्शन और बाकी चीज़ें, टू डेवलप त्रिकोणमाली एज एन एनर्जी हब, दैट्स अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट अमंग इंडिया, श्रीलंका एंड UAE। सो बेसिकली ये भी आपको बताना चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी कि ये जो त्रिकोणमाली है, ये एनर्जी हब, ये तीनों कंट्री के पार्टनरशिप में बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये जो MOUs की डिस्कशन दिए गए, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल इनिशिएटिव्स, एरिया ऑफ डिफेंस, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन यहाँ आप इग्नोर कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। फिर उसके बाद में जो भी रिमेनिंग MOUs हैं वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ बताया गया है। बट प्राइमरी इस पूरे आर्टिकल में आपके 2025 के प्रीलिम्स के हिसाब से आपको बस ये पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक का जो समिट है वो हो रहा है थाईलैंड में। ठीक है,
उसके बाद में ये जो ट्रिकोनमाली एनर्जी हब है ये इंडिया श्रीलंका यूएई के कोऑपरेशन से बन रहा है। इसके बियॉन्ड जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके मेंस में ही काम में आएगी। तो अभी फ़िलहाल उसको इतने तवज्जो से, इतने सीरियसली देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल फोकस करो कि आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स। बाकी चीज़ें हम लोग 25 मई के बाद भी देख लेंगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। आवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2025। सिंस यू ऑल नो कि इंडिया में स्टील प्राइसेस को लेकर बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, बोथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरर साइड एंड फ्रॉम इम्पोर्टर साइड। मैन्युफैक्चरर थोड़ा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में वो थोड़ा सस्ता मिलता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो ये कोशिश करती है कि उनको सस्ते दाम में स्टील बाहर से मिल जाए, क्योंकि इंडिया का जो स्टील जो हम यहाँ बनाते हैं वो महंगा होता है। तो इसीलिए दोनों को ही बैलेंस करने के हिसाब से कह लीजिए, या इंडिया के जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाई है। तो ये पॉलिसी के कुछ कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ या रीड आउट कर लेता हूँ। इंडिया हैज़ रिवॉल्व्ड इस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी डोमेस्टिकली manufacture iron and steel product policy 2025, and in the process has cracked down on surging steel imports that have hit domestic market stability and are threatening the survival of primary mills। बेसिकली यही बात जो मैंने शुरू में आपको बोली थी। एंड द न्यू पॉलिसी stringent procurement rules mandate a clear preference। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, stringent procurement rules एंड मैंडेट किया हुआ है that a clear preference should be given for indigenously produced steel for government contracts, shutting out foreign competition। ठीक है। A reciprocal clause bans suppliers from nations that bar Indian firms from their government tenders। So basically ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है कि अगर फॉरेन कंट्री में नहीं हो रहा है तो हम भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड देयर एफिलिएटेड एजेंसीज हैव बीन डायरेक्टेड टू prioritize iron and steel products manufactured within India with immediate effect, and these includes items such as flat rolled steel, bar, rods and railway material, and these materials must comply with melt and pour condition, meaning the steel must be melted and solidified in India only। ये इसकी क्रूशल कंडीशन है, ठीक है। एंड इंडस्ट्री सोर्सेज से यहाँ पे लिखा है चाइना कंटिन्यूज टू बी अमंग द टारगेट नेशंस अंडर दिस रिवाइज प्रोक्योरमेंट रूल्स, क्योंकि जनरली चाइना से बहुत ज़्यादा स्टील आता है, तो कहीं ना कहीं उसको ही टारगेट करने के लिए ये रूल्स लाए गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का या सोर्सेज का मानना है। देयर आर ऑल्सो एफर्ट्स टू स्लो इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर एशियन कंट्रीज विथ विच इंडिया हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो उसकी भी बात हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि द न्यू पॉलिसी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज GTEs फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स एंड लिमिट्स सच इंक्वायरीज फॉर कैपिटल गुड्स वैल्यूड अप टू 200 करोड़ अनलेस अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली ये सारे मेजर्स लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अदरवाइज इन लोगों का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने टफ कंडीशंस में। द पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस अ रेसिप्रोकल क्लॉज वेयर इन एंटिटीज फ्रॉम द कंट्रीज दैट रेस्ट्रिक्ट इंडियन कंपनीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट विल बी बार्ड फ्रॉम बिडिंग इन इंडिया फॉर स्टील रिलेटेड आइटम्स अनलेस एक्सप्लिसिटली परमिटेड बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है। और इसमें एडिशनल चीज़ ये भी बताई है कि रिवाइज पॉलिसी स्टेट्स दैट कैपिटल गुड्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द अलॉय सच एज फर्नेसेस एंड रोलिंग मिल्स मस्ट अचीव एटलीस्ट 50% ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो ये पॉलिसीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछ लें। मेंस में आपको इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रीलिम्स में दे माइट आस्क यू सर्टन थिंग्स बिकॉज स्टील इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक सिंस लास्ट 1 ईयर। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो आई थिंक मैंने ठीक ठाक नंबर में आज के आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और भी अगर कुछ रहता है तो मैं देख लेता हूँ। और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ US national arrested for entering restricted tribal reserve in Andaman and Nicobar। सो बेसिकली इसका नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है,
प्राइमरीली आपको बस एक चीज़ याद में रखनी है कि ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है ये एक प्रोटेक्टेड ट्राइबल रिजर्व है, वेयर आउटसाइडर्स आर प्रोहिबिटेड टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस सेंटिनलिस्ट ट्राइब हु हैव हैड लिटिल कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए इनका कॉन्टैक्ट बाहर के लोगों से मना किया हुआ है। तो बस यही समरी के जो पॉइंट्स है यही आपको ध्यान में देने हैं, इसके अलावा कुछ यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत है नहीं। लास्ट में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि सिंस आई कवर दी करंट अफेयर्स इन मोस्ट डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, तो पूरा का पूरे सारे के सारे न्यूज़ आइटम्स यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पीडीएफ तो वैसे ही हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, इसलिए वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बट मुझे जो लगता है कि जिस पर सवाल यूपीएससी बना सकती है या आपको उस टॉपिक पे सवाल पूछा जा सकता है, तो वो ब्रीफली मैं कुछ आर्टिकल्स यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, इस पीडीएफ को पढ़िए और अपनी तैयारी को प्रॉपर मोमेंटम देते रहिए और अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक से खाइए, फालतू की बातों का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी फील करने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट के बारे में फ़िलहाल मत सोचिए। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ आपकी क्वेरीज डिस्कस कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मैं आऊँगा कल नए टॉपिक्स नए न्यूज़ आइटम्स को डिस्कस करने के लिए। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।